we have studied that carbon is a non-metal. It has valency 4. It has valency 4. It is an important element. It is an important element because it is present in many substances which we are using in our day-to-day life. कार्बन जो है it is present in many organic substances and inorganic substances. It is present in many inorganic and organic substances. डे टू डे लाइफ में अपन जो भी सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑयल है, ठीक है, वुड है, सिल्क, कॉटन, रेयॉन, क्रीम्स, वेरियस क्रीम्स आर आल्सो कंटेन्स कार्बन. Then organic substances means the living body. It is made up of carbohydrates, proteins, fats and vitamins. All those are also carbon compounds. Carbon exists in nature in free form. That means in elemental form as well as in combined form. As well as in combined form. Carbon exists in nature in elemental form as well as in combined form. In elemental form, carbon exists in nature in the form of coal, in the form of diamond, in the form of graphite, and in the form of fullerenes, and in the form of fullerenes. Then in combined form, carbon exists as compound form. Combined form means in the form of compounds. जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट है. बेकिंग सोडा में प्रेजेंट है कार्बन, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है. अब जो एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन के, जैसे कि डायमंड और ग्राफाइट, these are called as allotropes of carbon. These are called as allotropes of carbon. ठीक है, ये अपन ने स्टार्ट किए थे कल allotropes of carbon. उसके पहले हमने देखे थे the versatile nature of carbon. The versatile nature of carbon. ठीक है, versatile nature of carbon. कार्बन जो है it is of versatile nature means it forms large number of compounds. It forms large number of compounds. उसके रीजन भी देखे हमने. Why does it forms large number of compounds? Because of tetravalency. Because of tetravalency means it can form bonds with 4 other atoms. It has valency 4, therefore it can form bond with 4 other atoms. And due to its property of catenation, catenation is the property of an element due to which it can form bond with itself. It can form bond with itself. ठीक है, कार्बन जो है वो अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है and it can form long chains. These chains can be straight chains. These chain can be branched. ब्रांचिंग में भी कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है. And it can form also rings. It can also form rings, due to which carbon forms large number of compounds. It is of versatile nature. क्योंकि कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है. वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से. स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से. आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है जो शेयर करके वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा वो भी बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं. इसलिए कार्बन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, ये वहां अपन ने देखे थे कि कार्बन जो है it exists in nature in elemental form as diamond and graphite and fullerene. These are called as allotropes of carbon. These are called as allotropes of carbon. ठीक है,
Allotropes means the different physical forms of the same element. What are allotropes? The different physical forms of the same element. Different physical forms. Different physical forms of the same element. Are called as allotropes. ठीक है, यानी केमिकली सेम है, डायमंड और ग्राफाइट और फ्यूलेरिन, डायमंड, ग्राफाइट और फ्यूलेरिन जो है ये केमिकली सेम है, मीन्स दे कंटेन्स ओनली एंड ओनली कार्बन. कोल भी है ना, कोल भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का. ऑल दीज कंटेन्स ओनली एंड ओनली कार्बन. When they are burned, they produce only carbon dioxide gas, and that carbon dioxide can be tested by inserting it in lime water. That lime water turns milky. It proves that diamond, graphite, and fullerenes, coal, are only made up of carbon. These are different forms of the element carbon. These are called as allotropes. Allotropy is a phenomena by which an element can exist in different physical forms. Chemical reactions उसके same हैं, लेकिन physical ही वो different है. तो हमको सबसे पहले देखना है कि डायमंड और ग्राफाइट जो है, जो केमिकली सेम है, वो फिजिकली डिफरेंट कैसे है. ठीक है, how they are physically different. So we'll discuss about diamond and graphite. The differences between diamond and graphite. ठीक है, तो डायमंड जो है, it is the hardest natural substance known. Diamond is the hardest natural substance known. ठीक है, डायमंड कैसा है, you know that और भी substances हैं नेचर में, और substances हैं जो डायमंड से भी हार्ड हो सकते हैं. समझ में आया क्या? जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड, ये भी डायमंड से भी हार्ड है, लेकिन अभी ये तो 11th 12th में पढ़ोगे फिर आगे. अभी अपने को क्या पता है कि डायमंड जो है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, इट इज कलरलेस, इट इज ट्रांसपेरेंट. और इसके अपोज में ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस. ग्राफाइट कैसा है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच. स्लिपरी टू टच. ठीक है, डायमंड जो है वो कलरलेस है. डायमंड कैसा है? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट. और ग्राफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का है. ग्राफाइट कैसा है? ग्रेइश ब्लैक कलर का. एंड इट इज ओपेक. एंड इट इज ओपेक. ओपेक है मतलब वो लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं करता. लेकिन डायमंड ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट लाइट. इट हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस. इसमें चमक है. डायमंड में क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी इसमें चमक है. क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है. जबकि ग्राफाइट जो है, इट इज ऑफ डल अपीयरेंस. इट इज ऑफ डल अपीयरेंस. ठीक है, डिफरेंसेस देखो. ये हार्ड सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट सब्सटेंस है. ये कलरलेस है, ये ग्रेइश ब्लैक कलर का है. ये ट्रांसपेरेंट है डायमंड, ये ओपेक है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चमक है, ब्रिलियंस है. ये डल अपीयरेंस का है. ठीक है, ये क्या है? डल अपीयरेंस का. देन डायमंड जो है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट ग्राफाइट जो है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट जो है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये डिफरेंस है इनके, फिजिकल डिफरेंस. अब ये डिफरेंस क्यों है? डायमंड और ग्राफाइट में जो डिफरेंसेस आए हैं
वो क्यों आए हैं? उनके स्ट्रक्चर के वजह से, उनके स्ट्रक्चर के वजह से। अब डायमंड जो है ये हार्ड सब्सटेंस है, मतलब नेचुरली इसकी डेंसिटी भी हाई रहेगी। यहाँ पे और पर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई डेंसिटी। लेकिन ग्राफाइट में डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इट हैज लो डेंसिटी, इट हैज लो डेंसिटी। ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। ठीक है, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है डायमंड का, इट इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस और अबाव आल्सो, इट कैन बी अबाव 4000, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ डायमंड, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ डायमंड। लेकिन ग्राफाइट का लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ग्राफाइट का लो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका 1000 डिग्री सेल्सियस वगैरह है, समझ आ रहा? लेकिन डायमंड का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट से हाई डेंसिटी है। ठीक है, अब ये तुम देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है इसका और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट। ये प्रॉपर्टीज जो है डायमंड और ग्राफाइट की, उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। अपन स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले डायमंड का, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। Structure of diamond. Now you know that diamond is made up of carbon atoms. Infinite number of carbon atoms are present in diamond. Diamond में अनगिनत infinite number of carbon atoms present है. Now one carbon atom in diamond is linked to 4 other carbon atoms, is linked to 4 other carbon atoms. वन कार्बन एटम, अब अपने को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा अलग अलग दूसरे 4 कार्बन एटम से। तो एक कार्बन एटम जो है इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, and the 4 carbon atoms are present at the 4 vertices of a regular tetrahedron, at the 4 vertices of a regular tetrahedron, at the 4 vertices of a regular tetrahedron। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन जो है वो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन जो है तुम लोगों ने मैथ्स में वगैरह पढ़े, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, जैसे तुमने कोन पढ़े होंगे इसमें, ठीक है, क्यूब पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे, क्यूबॉइड पढ़े होंगे, है ना, ये सब स्ट्रक्चर जो है यू विल हैव स्टडीड इन मैथ्स। वैसे ही टेट्राहेड्रॉन भी एक स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, इसमें कैसा रहता, कार्बन जो है वो सेंटर में है एक, और 4 कार्बन एटम जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। है ना, डायमंड का शेप भी ऐसे ही रहता है ना, डायमंड का अपन शेप निकालते तो कैसा रहता, ऐसा रहता है ना। ये अपन सिंपल इसमें बता रहे, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल। सेंटर में एक कार्बन एटम है और 4 कार्बन एटम्स जो है they are present at the 4 vertices of a regular tetrahedron। जो 4 कार्बन एटम है दूसरे, they are present at the 4 vertices of a regular tetrahedron। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डायमंड का। कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका। ये जो एंगल बन रहा है ये है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का। ठीक है, एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन के बीच में वो कितना है, 109.5 डिग्री का। ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें हर एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे और 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है। डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है कि हर एक कार्बन एटम और 4 कार्बन के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। मतलब यहाँ पे जो है फिर से
ये जो कार्बन है ये फिर से ठीक है, एक कार्बन एटम है, फिर ये कार्बन एटम है, ये भी जो है 3 कार्बन एटम से और बॉन्ड बनाएगा। ये जो कार्बन एटम है ये भी और 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा। हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम्स से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये भी 3 अलग अलग, और एक तो यहाँ पे जॉइंट है इसका, और 3 और बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी क्या करेगा, 3 और कार्बन एटम से जॉइंट हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो डायमंड में बने हुए हैं, और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड और रिजिड हो जाता है। कैसा होता है, हार्ड और रिजिड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड्स जो बने वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स है। कार्बन की चारों वैलेंसीज इसमें सेटिस्फाइड है। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है इस डायमंड के स्ट्रक्चर में। इसीलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के पास। There are no free electrons in diamond and hence it is a bad conductor of electricity. 3-dimensional structure बन रहा है डायमंड का, जिसमें हर एक कार्बन जो है वो 4 दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। वो इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है आपस में, और वो कोवैलेंट बॉन्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड। इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू माइट हैव ऑब्जर्व डायमंड, डायमंड को देखे होंगे तुमने, उस पे जब लाइट फॉल होती है तो वो चमकता है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे स्पेसेस बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे जैसे ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल्स ऐसे स्पेसेस बनते हैं, वो स्पेसेस पे जैसे ही लाइट गिरेगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, इसलिए डायमंड जो है वो चमकता है। इट शोज ब्रिलियंस, इट शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? डायमंड का एक कार्बन एटम जो, यस, डायमंड का एक कार्बन एटम जो है वो 4 और कार्बन एटम से लिंक्ड है बाय 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड द 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द 4 वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। फिर हर एक कार्बन फिर से और 4 कार्बन एटम से, ऐसे अनगिनत कार्बन एटम्स से ये डायमंड का स्ट्रक्चर बना है। इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है कार्बन एटम्स आपस में डायमंड में कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड बन जाता है। वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डायमंड में, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ इसके अपोजिट में ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है देखेंगे अपन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। नाउ ग्राफाइट जो है, इन ग्राफाइट आल्सो कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, है ना। ग्राफाइट भी कार्बन एटम से ही बना हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा? इन ग्राफाइट each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms। एक कार्बन जो है वो 3 अदर कार्बन एटम्स से लिंक्ड है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा वो, मतलब इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्राफाइट के पास। 1 carbon atom is linked to 3 other carbon atoms forming hexagonal rings, forming hexagonal rings। ठीक है, एक कार्बन एटम जो है वो 3 और कार्बन एटम्स से अटैच्ड है। अब उसका स्ट्रक्चर जो है अपन इस तरह से नहीं, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी तीसरा एक कार्बन एटम रहेगा, ये कार्बन एटम जो है यहाँ पे भी एक और कार्बन एटम
ठीक है, इधर में भी और एक कार्बन एटम रहेगा। लेकिन अपने को पहले समझना है कि इसमें हेक्सागोनल रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से साथ में बॉन्ड बना रहा है, फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स, फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ इस तरह से बनेगा, ठीक है। द डिफरेंट इट फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, मतलब एक लेयर रहेगी ऐसी हेक्सागोनल रिंग की, फिर उसके बाद में और एक हेक्सागोनल रिंग की लेयर रह सकती है यहाँ ऐसी। देखो ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट इट इज in this carbon atoms जो है, one carbon atom is linked to 3 other carbon atoms forming hexagonal rings. There are layers of carbon atoms, there are layers or sheets of the different carbon atoms in graphite. graphite के अंदर में sheets है, पूरी hexagonal rings की पूरी sheets है, which are far apart from each other, which are far apart from each other. ग्राफाइट के अंदर में क्या है, कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स है, और वो लेयर्स एक दूसरे से दूर दूर है, और दे आर कनेक्टेड विद वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो लेयर्स और शीट्स बनी है हेक्सागोनल रिंग्स की, इनमें भी अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, and this intermolecular force of attraction is called as van der Waals forces, is called as van der Waals forces, ठीक है। समझ में आया? ग्राफाइट में क्या हो रहा है, हेक्सागोनल रिंग्स है पूरी कार्बन एटम्स की, और बहुत सारी ऐसी लेयर्स है हेक्सागोनल रिंग्स की, जिनको शीट्स भी बोला गया है या लेयर्स भी बोला गया है, वो दूर दूर है, और एक शीट दूसरे शीट से कनेक्टेड है बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। कोहेजन फोर्सेस बोलते हैं उनको, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये लेयर्स जो है, दिस कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दिस कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, therefore graphite is soft and slippery to touch. ग्राफाइट जो है वो सॉफ्ट है और स्लिपरी टू टच है, क्योंकि इसमें लेयर्स बनी हुई है बहुत कार्बन एटम्स की, जो कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से अटैच्ड है एक दूसरे से, ठीक है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन की सिर्फ 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें हर एक कार्बन का फ्री है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आ गया? ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it has one free electron, because it has one free electron. Now uses of diamond and graphites. uses, अपने कल डायमंड के uses देखे थे थोड़े बहुत, ठीक है, और ग्राफाइट के uses। डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए वो यूज होता है in equipments, in equipment such as oil drilling machines, such as oil drilling machines, ठीक है, in glass cutters, in glass cutters, then it is used to make jewelry, it is used to make jewelry due to its extraordinary brilliance, it is used by the eye surgeons to remove the cataract, उनके पास में भी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है आई सर्जन्स के पास, जिसकी वजह से वो कैटरैक्ट जो है उसको रिमूव कर देते हैं आंखों से। ये सब टंगस्टन फिलामेंट जो है उसको भी कट करने के लिए डायमंड जो है वो काम आता है। अब ग्राफाइट जो है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, therefore it is used to make electrodes, therefore it is used to make electrodes। ग्राफाइट जो है इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स, है ना। जो सेल के अंदर ब्लैक इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स पूरे ग्राफाइट से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर में जो कार्बन ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस वो भी ग्राफाइट से बने हैं। कार्बन ब्रशेस जो है इलेक्ट्रिक मोटर में अपन ने स्टडी किया
वो भी किससे बने हुए हैं, ग्राफाइट से बने हैं। और ग्राफाइट सॉफ्ट है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है ग्राफाइट, नॉन वोलेटाइल, therefore it is used as a lubricant, it is used as a lubricant in machine parts, in machine parts where other lubricants such as oil cannot be used, है ना। ऑयल वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसलिए जो मशीन्स बहुत ज्यादा हाई पावर पे वर्क करती है, लार्ज एनर्जी पे वर्क करती है, उसमें ऑयल जो है वो लुब्रिकेट करके यूज नहीं होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो वोलेटाइल है। इसलिए मशीन अगर बहुत गर्म है सपोज, और वहां पे अगर अपन ने ऑयल डाल दिए तो वो बर्न हो सकती है। लेकिन ग्राफाइट जो है ये नॉन वोलेटाइल है, ये पाउडर फॉर्म में एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, या तो इसको फिर ग्रीस में मिक्स कर देते। इसको क्या करते हैं, इट इज मिक्स्ड विद ग्रीस एंड ग्रीस ग्राफाइट लुब्रिकेंट करके यूज करते हैं उसको। समझ में आया, ग्राफाइट को क्या में मिक्स कर देते ग्रीस में, और फिर उसको एज ए लुब्रिकेंट जेली जैसा बन जाता है वो, और वो फिर लुब्रिकेंट जैसा यूज करते हैं बहुत जगह, जैसे कि कूलर्स में, जो भी मशीन्स हाई पावर पे वर्क करती है वो मशीन्स में क्या करते हैं, ग्राफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ग्राफाइट जो है वो ब्लैक कलर का है, ग्रेइश ब्लैक कलर का, इसलिए वो पेपर पे ब्लैक कलर देता है, इसलिए उसको पेंसिल लिड में भी यूज करते हैं। कहाँ में यूज करते हैं, टू फॉर्म द पेंसिल लिड्स। समझ में आया, ग्राफाइट जो है इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक द पेंसिल लिड, क्योंकि वो ब्लैक मार्क देता है व्हाइट पेपर पे, इसलिए। तो समझ में आया बेटा, डायमंड एंड ग्राफाइट, ऑल ऑफ यू गॉट इट। डायमंड और ग्राफाइट में क्या डिफरेंसेस है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फिजिकल फॉर्म में कैसा डिफरेंस है। डायमंड जो है ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि ग्राफाइट जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, ओपेक है। डायमंड एकदम हार्ड है, लेकिन ग्राफाइट एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। डायमंड जो है इसका हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ग्राफाइट की हाई डेंसिटी नहीं है, लो डेंसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। डायमंड का स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखे, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स बने हुए हैं और इसमें हेक्सागोनल रिंग्स है, शीट्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स की पूरी लेयर्स है जो कि दूर दूर है बहुत, और वो आपस में कनेक्टेड है बाय वीक कोहेजन फोर्सेस, बाय वीक कोहेजन फोर्सेस, ठीक है। इसलिए ये ग्राफाइट सॉफ्ट है। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन है। कार्बन एटम्स अपन मेजर नहीं कर सकते दोनों में भी, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसमें पूरे इंटरलॉक्ड है, कार्बन एटम्स एकदम इंटरलॉक्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड। इसमें लेयर्स जो है हेक्सागोनल रिंग्स वो दूर दूर है, इसलिए ये सॉफ्ट और स्लिपरी टू टच है, ठीक है। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू, डायमंड एंड ग्राफाइट। नाउ द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फ्यूलेरी, or it is called as Buckminster Fullerian. The third allotrope of carbon is Buckminster Fullerian. Buckminster Fullerian, ठीक है। फ्यूलेरिन जो है एक पूरी इसकी कंपाउंड्स जो है अलग अलग फ्यूलेरिन्स के बहुत सारे हैं, और नेक्स्ट ईयर 11th में तुम बकमिन यानी फ्यूलेरिन्स की पूरी रेंज ऑफ कंपाउंड्स या रेंज ऑफ एलोट्रोप्स अलग अलग टाइप के, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स, ये सब पढ़ोगे 11th में। अभी तुमको शॉर्ट में बताया गया है कि बकमिंस्टर फ्यूलेरिन जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का। इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स, इट कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स। इट इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉल लाइक, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला रहेगा C60, फॉर्मूला कैसा रहेगा इसका C60। जैसे डायमंड और ग्राफाइट में फॉर्मूला क्या है, ओनली C। डायमंड और ग्राफाइट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिर्फ C, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन बकमिंस्टर फ्यूलरिन में 60 कार्बन एटम्स है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा C60। अब इसमें जो है हेक्सागोनल रिंग्स है और पेंटागोनल रिंग्स है। इसके स्ट्रक्चर में बकमिंस्टर फ्यूलरिन के हेक्सागोनल रिंग्स है और पेंटागोनल रिंग्स है। बकमिंस्टर फ्यूलरिन में क्या है? हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स। 12 हेक्सागोनल रिंग्स है, ठीक है, 12 हेक्सागोनल रिंग्स है और 20 पेंटागोनल रिंग्स है। कितने? 12 हेक्सागोनल रिंग्स है और 20 पेंटागोनल रिंग्स है। फिक्स्ड है, उसमें भी पूरे कार्बन एटम्स जो है 20 hexagonal rings and sorry 20 hexagonal rings